slowly creeps behind him, takes a rope, wrap around his neck, and began strangling Lou. This kept on going for months and months and months, but at the same time, she wanted कि उसे death sentence मिल जाए. Hello, how are we? Welcome back to my channel. I hope you all are having a fantastic day. How was your week? Mine was quite eventful. At the start of the week, I ordered a mic to my friend's address because I wasn't going to be home at the time the mic was supposed to get delivered. I picked it up from my friend's address, took a bus to my house, and I just left the mic in the bus. Carelessness. And I thought I'm never going to get it back. So I ordered another mic, but someone, a very nice human being, they returned the mic to my friend's address. I don't know who that person was, but thank you. So now I have two mics. I'm going to return one, obviously. Other than that, this is my birthday week. So happy birthday to me. Woohoo! Because this year my birthday was on Thursday. None of my friends could make it. So I decided to take myself out for lunch alone. I went to this cute hot pot place. I usually go there. It's one of my favorite restaurants here in the UK. They were really nice. They gave me a teddy bear to sit next to me while I eat so I don't feel alone. So that was really cute. I'll insert a picture here. So that was really nice. But other than that, I think I'm really excited to see what this year has in store for me. I have set few goals for myself. I want to be a better listener. Hopefully, I'm able to improve my relationship with food. Also, one of my biggest goals this year is to be consistent with making videos because this is something that I really enjoy. But because of my procrastinating habits, I'm not being consistent with it. And I think with YouTube, if you want to grow, you have to be consistent. So that's something that I really want to do because it's not like I'm not able to, it's just me being lazy, which is not fruitful at all. So I'm going to try and be consistent in making videos. But other than that, let's talk a little bit about the video. So a few days back, I was just laying in my bed, scrolling through my phone, my usual habit, and I stumbled across this post on Reddit and it piqued my interest. The post was about how two brothers went missing in a village in China and the mysterious way they were found and how their disappearance led to unfold one of the dirtiest secret of the village. Because today's case takes place in China, I have altered some names to help me pronounce them better. I think that's enough for the introduction. Let's jump right in the story. 27th April 2010 was a normal day in the Shenghua village. Kids were going to school, adults were going to their work, and nothing was out of ordinary. Around 1 p.m. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का एक ग्रुप अपने लंच ब्रेक के लिए कैंटीन में जाते हैं और वो वहां जाकर देखते हैं कि खाना रेडी ही नहीं है. पूरा दिन काम कर कर अब उन्हें टाइम पर खाना भी नहीं मिल रहा. ये देखकर ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ के कुक को ढूंढने लगते हैं. इस कैंटीन में 4 दिन पहले ही 65 ईयर ओल्ड लू को एज ए कुक हायर किया गया था. जब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लू कहीं भी नहीं मिलता है तो उनमें से एक कंस्ट्रक्शन वर्कर लू के घर जाता है टू चेक ऑन हिम. जब वो लू के घर पहुंचता है तो वो लू के डोर पे नॉक करता है. वो देखता है कि लू के घर की लाइट्स ऑन है और उसके डोर जो है फ्रंट डोर वो थोड़ा सा खुला हुआ है. तो वो उसके डोर पर नॉक करता है, लू लू. अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वो घर के अंदर चला जाता है और वो वहां जाकर देखता है कि लू वहां पर है नहीं और कोई भी उस घर में नहीं है. ये बात आकर वो वापस जो कैंटीन में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेट कर रहे थे उन्हें बताता है एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे बिकॉज नॉट बिकॉज लू मिसिंग है बट इसीलिए कि उन्हें खाना नहीं मिला और वो वहां से चले जाते हैं. अपने डिवोर्स के बाद 20 साल से लू इस विलेज में अकेला ही रह रहा था क्योंकि लू 65 ईयर्स का था. कोई भी उसे काम पर रखना नहीं चाहता था. वो कभी कभार इधर उधर छोटे मोटे काम कर लिया करता था. उसे कुक की जॉब भी 4 दिन पहले ही मिली थी तो लोगों ने अज्यूम कर लिया कि बिकॉज बीइंग अ कुक इट्स अ टफ जॉब और लू से ये काम हुआ नहीं तो वो आसपास के किसी गांव में कोई नया काम ढूंढने के लिए चला गया है. लू इस गांव में अकेला रहता था और क्योंकि उसकी कोई सोशल लाइफ भी नहीं थी देयर वर नॉट मेनी पीपल हु वर कंसर्न्ड अबाउट हिम मिसिंग. पर गांव में कुछ लोग इस बारे में बात कर रहे थे और इन्हीं में से एक इंसान ने ये बात जाकर लू के छोटे भाई 46 ईयर्स ओल्ड लाओ को बताई. लाओ ने जब सुना कि उसका बड़ा भाई मिसिंग है तो वो सारी जगहों पर गया जहां पर लू अक्सर जाया करता था. पर पूरी दोपहर ढूंढने के बाद भी जब उसे लू कहीं नहीं मिला
तो लाओ ने थक हार कर पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट फाइल करी। लाओ को लगा कि पुलिस उसके भाई को जल्दी ढूंढ लेगी, बट पुलिस डिडंट सीम दैट इंटरेस्टेड। दैट्स व्हाट इंटरनेट सेज। लू के डिसअपियरेंस के 2 दिन बाद 29 अप्रैल को गांव के कुछ लोग लाओ से मिलने वाले थे, पर लाओ इस मीटिंग के लिए आता ही नहीं है। गांव वाले लाओ के घर जाते हैं टू लुक फॉर हिम, एंड जस्ट लाइक लू, लाओ के घर की लाइट्स ऑन थी। उसका फ्रंट डोर थोड़ा सा खुला हुआ था, और जब गांव वालों ने उसके डोर पर नॉक किया तो अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, और जब वो घर के अंदर गए तो वहां पर कोई भी नहीं था। They tried to call Lau, but Lau's phone was switched off, and this was very unusual for Lau because Lau was almost always available on phone. Lau had a family and a great set of friends, and as soon as they heard Lau is missing, they went straight to the police. ये चीज़ पुलिस के लिए भी बहुत शॉकिंग थी for two reasons. फर्स्ट, लास्ट टाइम लाओ को अगर किसी ने देखा था तो वो थी पुलिस, जब लाओ अपने बड़े भाई की रिपोर्ट लिखवाने आया था। एंड सेकंड, 2 दिन के अंदर अंदर दोनों भाइयों का अचानक से ऐसे गायब हो जाना, लीविंग नो ट्रेस बिहाइंड, सस। पुलिस अब इस केस को बहुत सीरियसली ले रही थी, एंड दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग। अपने इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का प्राइम फोकस लाओ पर था, अगेन फॉर टू रीजंस. First, Lau is a young individual who worked as a farmer, has a lot of friends and family, and engaged with a lot of people on daily basis. And second, लाओ के पास सेल फोन था जिसको ट्रैक कर पुलिस को शायद कुछ लीड्स मिल सकती थी। पुलिस लाओ के सेल फोन रिकॉर्ड्स को ट्रैक करने के लिए रिक्वेस्ट डालती है, एंड बैक देन सेल फोन रिकॉर्ड्स आने में टाइम लगता था। इसी बीच में पुलिस गांव वालों से भी अपनी पूछताछ चालू कर देती है। पुलिस गांव के बिजनेसेस और लोकल क्लिनिक्स पर जाती है, और इनमें से ही एक डॉक्टर सू होंग के घर पुलिस पहुंचती है। पुलिस को गांव वालों से पता चला था कि लाओ का सू के घर पर अक्सर आना जाना लगा रहता था, और लाओ के सेलफोन रिकॉर्ड से भी ये पता चला कि जिस दिन लाओ डिसअपियर हुआ उस दिन उसने 2 बार सू से बात करी थी। पुलिस को ये उम्मीद थी कि शायद लाओ ने सू को बताया हो कि वो कहाँ जा रहा है, और जब पुलिस ने सू से इस कॉल के बारे में भी पूछा तो सू ने उन्हें बताया कि 29 अप्रैल को लाओ सू के घर आया था अपने पैसे वापस लेने, और पैसे लेकर वो वहां से चला गया। पुलिस के पास सू के ऊपर शक करने के लिए कुछ था भी नहीं, तो वो वहां से चले गए और गांव के अलग अलग एरियाज में सर्च शुरू कर दी, इन होप्स दैट दे विल फाइंड समथिंग। पर वो जिस भी डायरेक्शन में जाते उन्हें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा था। एक पॉइंट पर आकर इन्वेस्टिगेशन स्टक हो गई थी, क्योंकि पुलिस को पता ही नहीं था कि वो किस डायरेक्शन में जाए। देयर वर नो लीड्स। पर फिर अचानक से 10 मई को लाओ की बहन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, पिंग, एंड गेस व्हाट, इट वाज अ मैसेज फ्रॉम लाओ। The message read, quote, "Let me be honest with you. I accidentally killed Big Brother. I said I was going to Shangdong to find his son, and he got anxious, not letting us approach his son. Why is he like this? At that time, I had been drinking and got into it with him. He got up, so I pushed him, probably too hard. He didn't stand steady, and his head hit the door frame. When I checked, he had no pulse. I was scared, so I took care of Big Brother by moving the motorcycle. I was afraid of getting caught, so I left." Unquote. पुलिस को लगा that they are so close to solving the case. एक भाई का अपने बड़े भाई से झगड़ा हुआ, और गुस्से में आकर उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया, और अब वो जेल से बचने के लिए पुलिस से भाग रहा है। एंड ऑफ द केस, मिस्ट्री सॉल्व, राइट? नो. What they were going to find next is much 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 sinister than what they were thinking. लाओ ने अपने मैसेज में मेंशन किया था कि एक्सीडेंटली उसने लू का सर अपने घर की डोर फ्रेम पर हिट किया है, बिकॉज ऑफ विच ही एंडेड अप डाइंग। तो इस हिसाब से उस डोर फ्रेम पर लू का ब्लड या फिंगरप्रिंट कुछ तो होना चाहिए, बट फोरेंसिक रिपोर्ट शोड दैट देयर वाज नो ट्रेस ऑफ लू on that door frame in that house. Another interesting thing is that Lao is supposedly on the run, right? तो फिर वो क्यों अपने बेड पर 3000 yuan कैश ऐसे ही छोड़कर चला जाएगा? क्योंकि अगर आप पुलिस से भाग रहे हो तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होगी? पैसों की, कैश की, राइट? बट ही डिडंट टेक दैट। अब पुलिस को समझ में आ गया था कि दाल में कुछ तो काला है। इसके अलावा लाओ का फोन जब भी स्विच ऑन होता, वो सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ये मैसेज भेजने के लिए होता कि आई किल्ड बिग ब्रदर, आई डिड इट अलोन, और उसके इमीडिएटली बाद वो अपना फोन स्विच ऑफ कर लेता था। ये जो भी मैसेजेस लाओ भेज रहा था उसमें पुलिस ने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोट किया।
इन सारे मैसेजेस में बहुत ही अच्छी ग्रामर का यूज़ किया गया था और पंक्चुएशन मार्क्स का भी अक्सर इस्तेमाल हो रहा था। लाओ जब भी अपने मैसेजेस भेजता था, वो बहुत सी टाइपिंग एरर्स करता था और पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करता था। ये मैसेजेस पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत पढ़े लिखे इंसान ने ये मैसेजेस लिखे हैं, जैसे कि किसी डॉक्टर ने ये मैसेज लिखे हैं, लाइक डॉक्टर सू। इसके साथ साथ पुलिस को लाओ के एक कजिन ने यह भी बताया कि जब वो एक बार लाओ के साथ बैठ के बात कर रहा था, तो लाओ ने उससे कहा कि इफ समथिंग हैपन टू हिम दे शुड नो दैट इट्स डॉक्टर सू। ये सब सुनने के बाद पुलिस ने सोचा कि एक बार वो फिर से डॉक्टर सू से जाकर मिल ही आते हैं। पुलिस जब दोबारा सू के घर गई तो सू ने उनके हर जवाब का आंसर बहुत ही कॉन्फिडेंटली अच्छे तरीके से दिया, बट दिस टाइम पुलिस वॉज ऑन अ हाई अलर्ट। They were looking around, they were looking at everything, they were looking at Sue, they were looking at her actions, they were looking at everything that was in Sue's house, and that's when they noticed a cellar. शिंगुआ विलेज चाइना के नॉर्दर्न प्रोविंस में है और इस प्रोविंस में बहुत ठंड पड़ती है और इसीलिए हर घर में एक सेलर बिल्ट होता है जिसमें रेजिडेंट्स ठंड के लिए अपना फूड स्टॉक रखते हैं। पुलिस जब इस सेलर के पास गई तो सू स्टार्टेड पैनिकिंग। वो बार बार कोशिश कर रही थी कि वो पुलिस को इस सेलर से दूर ले जा सके, बट दे कुड सेंस फियर इन सूज आईज। सू की लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस डिसाइडेड टू ओपन दैट सेलर एंड हैव ए लुक इनसाइड। पुलिस ने बैकअप के लिए टीम को बुलाया और उन्होंने जैसे ही उस सेलर का डोर ओपन किया, द स्मेल हिट देम राइट इन देयर फेसेस। डिड यू नो दैट डेड बॉडीज हैव अ वेरी peculiar smell? Most of the crime detectives have mentioned that the smell of rotten human flesh is so unique that you just know by the smell what you are going to find. Let me try to put in words what was inside the cellar. The floor of the cell was covered in human feces. Along with that, police found plastic bags, two bed sheets that were wrapped around something as protective cover, and a fully decomposed remains of a human. When police opened those bed sheets, they found the remains of both brothers Liu and Lao. But who was the third person who was found dead in the cellar? And why was Liu and Lao killed? Before we go into that, let's rewind a little to know who is Dr. Su, the China's lady serial killer, the woman who shook the entire nation. Su Hong was born in the family of farmers in the small village of Tsinghua. Both of Su's parents were farmers, but they didn't live a comfortable life. Because Su अपने सारे भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, बहुत छोटी सी उम्र से ही सू के ऊपर अपने दोनों भाई और बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और वो जानती थी छोटी उम्र से ही कि उससे कुछ बड़ा करना है लाइफ में ताकि वो अपने आप को, अपने सिबलिंग्स को और अपने माँ बाप को इस गरीबी से निकाल पाए। क्योंकि गांव में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, अपना स्कूल फिनिश करने के बाद सू एक नेबरिंग टाउन में मेडिकल कोर्स करने के लिए चली गई। अपनी डिग्री फिनिश करने के बाद वो उसी गांव के एक क्लिनिक में काम करने लग गई। इसी टाइम पर सू ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड वांग से शादी करने का डिसाइड किया। सू के पेरेंट्स इस शादी से खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि सू और वांग एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है। जहाँ पर सू एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थी, उसका टू बी हस्बैंड एक फार्मर था एंड सू के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड में ये डिफरेंस होने की वजह से उनके रिलेशनशिप में आगे चलकर बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। बट बिकॉज सू ये शादी करना चाहती थी, दे डिडंट हैव अ चॉइस एंड दे जस्ट वेंट अलोंग विद इट। अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि इस चीज़ में एजुकेशन का कोई रोल था, पर शादी के कुछ टाइम बाद ही सू और वांग के रिलेशनशिप में क्रैक आने लग गए थे। वांग लेट लेट तक घर नहीं आता, अलग अलग विमेन के साथ सू के ऊपर चीट करता एंड ओवरऑल द थिंग्स weren't गोइंग ग्रेट फॉर द कपल। सू को लगा कि अगर उनका बेबी हो जाता है तो शायद वांग एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर, एक रिस्पॉन्सिबल फादर बन जाए और शायद उनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, और इसी होप में सू गॉट प्रेग्नेंट एंड शी गेव बर्थ टू अ ब्यूटीफुल बेबी गर्ल। बट फॉर वांग ही डिड नॉट केयर, ही जस्ट couldn't seem to care। अपनी बेटी के बर्थ के तुरंत बाद वांग ने अपना सामान पैक करा, सू को बोला कि वो काम की तलाश में कहीं दूर किसी प्रोविंस में जा रहा है एंड दैट्स इट। ही नेवर केम बैक। सू रियली वांटेड दिस मैरिज टू वर्क एंड शी वाज लेफ्ट completely heartbroken when she got to know that her husband has found a different woman in different province and he is settling down with her and starting a family। Heartbroken, Sue had no choice but to divorce her husband। She packed her stuff, took her daughter, and moved back to her parents' house।
सू के सिबलिंग्स भी अब बड़े हो गए थे, दे मूव्ड आउट टू डिफरेंट सिटीज फॉर वर्क, दे वर मैरिड एंड दे हैड किड्स, बट वो अपने बच्चों को सू के पेरेंट्स के घर पर रखते थे और हर महीने कुछ पैसे भेजा करते थे अपने बच्चों के ऊपर खर्चा करने के लिए। सू के पेरेंट्स भी अब ओल्ड हो रहे थे, तो अब सू के ऊपर अपनी, अपनी बेटी की, अपनी नीसेस एंड नेफ्यूज और अपने ओल्ड पेरेंट्स की केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, एंड दिस वॉज अ लॉट। सू नाउ हैड अ लॉट ऑफ माउथ्स टू फीड। सू को अपने काम के लिए गांव में इज्जत तो बहुत मिलती थी, बट वो इस प्रोफेशन से उतना पैसा अर्न नहीं कर पा रही थी कि इतने लोगों को पाल सके, और इसीलिए सू ने एक छोटा सा लैंड का पीस खरीदा और वहां पर अपने फादर के साथ फार्मिंग करना भी शुरू कर दिया टू हैव दैट एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। स्टोरी के इस पार्ट में सू एक ऐसे मर्डर के लिए कन्फेस करती है जिसके बारे में शायद किसी को कोई आइडिया ही नहीं था। In February of 2003, Sue's sister comes home one day. She was panicking, she was crying, and she told her sister that during an argument with her husband, Bing Tao, he got so agitated that he started beating her. He thrashed her. Sue asked her sister to stay the night with her. अगली सुबह बिंगताओ अपनी वाइफ को ढूंढते हुए सू के घर आता है। वो सू से डिमांड करता है कि वो उसकी वाइफ को उससे मिलने दे, बट सू से समझाती है कि वो वहां से चला जाए। बिंगताओ ये मानने को राजी नहीं था कि उसकी वाइफ उससे डिवोर्स लेना चाहती है। वो अपने प्यार को प्रूव करने के लिए वहीं पे सू के सामने अपनी एक फिंगर को कट कर देता है। ये देखकर सू को ना तो उस पर प्यार आता है और ना ही तरस। इनफैक्ट सू को इतना गुस्सा आता है कि वो पास में पड़ी एक ग्लास की बोतल लेती है और कंटिन्यूसली बिंगताओ के सर पर उससे अटैक करने लगती है। ये अटैक के बीच में सू रियलाइजेस दैट शी हैज जस्ट अनअलाइव्ड बिंगताओ। शी किल्ड हिम। शी पैनिक्स एंड कॉल्स हर फादर। Her father comes home, calms Sue down, takes the body and lit his body on fire. No one will ever know where he took Bing Tao's body and where his remains are, because जिस टाइम पे सू ये सारी बातें पुलिस के सामने कन्फेस कर रही थी, her father was dead. He was no more. He died of natural causes. बिंगताओ के मर्डर को उसकी फैमिली से छुपाने के लिए सू बिंगताओ के फ़ोन से उसकी फैमिली को एक मैसेज करती है कि वो किसी दूसरे प्रोविंस में जा रहा है पैसा कमाने के लिए, और अब वो जब भी लौटेगा जब वो एक सक्सेसफुल आदमी बन जाएगा। और अगले 7 सालों तक, फ्रॉम 2003 until 2010 when Sue got arrested, no one raised a finger, no one thought that there is something fishy. सू के फादर ने सू को श्योर करा था कि किसी को भी पता नहीं चलेगा इस बारे में, एंड फॉर सूज सिस्टर शी कुडंट केयर लेस। वो वैसे भी अपने अब्यूसिव पार्टनर से डिवोर्स लेना चाहती थी, सो शी नेवर आस्क्ड एनी क्वेश्चंस, बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स अनआंसर्ड। अगर बिंगताओ की बॉडी वाज लिट ऑन फायर, तो उस सेलर में वो तीसरी बॉडी किसकी है? अब हम 2003 से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फैमिली वाज बैक टू देयर नॉर्मल रूटीन। नो वन टॉक्स अबाउट व्हाट दे डिड टू बिंगताओ एनीमोर। नवंबर 2005 में सू के भाई की बीवी यानी कि उसकी सिस्टर इन लॉ अपने बच्चों से मिलने के लिए सू के फैमिली होम में आती हैं। रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट सू लिव्स विद हर नेफ्यू एंड नीसेस। तो सू की जो सिस्टर इन लॉ है, लेट्स कॉल हर श्वे। श्वे अपने बच्चों से मिलने के लिए शिंगुआ विलेज आती है। श्वे और सू एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम पर वो एज ए सिस्टर रहा करते थे, बट स्लोली व्हेन श्वे रिटर्न their relationship started turning sour. एक दिन सू की मॉम आकर सू को बताती है कि उन्होंने श्वे को किसी और आदमी के साथ देखा है, और अब गांव में भी रूमर चालू हो गई है कि श्वे एक लॉयल पार्टनर नहीं है। क्योंकि सू अपने भाई का घर नहीं तोड़वाना चाहती थी, वो इस बात से खुश थी कि उसका भाई श्वे के साथ खुश है, वो इस चीज़ को लेकर शांत हो गई। बट सू का ब्रेकिंग पॉइंट जल्दी आने वाला था। एक दिन श्वे ने सू से कहा कि उन्होंने जितने भी पैसे आज तक सू को भेजे हैं, वो सारे पैसे श्वे को वापस कर दे। सू ने श्वे को समझाया कि आज तक जो भी पैसे उसे उसके भाई से या श्वे से मिले हैं, वो सारे पैसे उसने उन्हीं के बच्चों के क्लोथिंग, मेडिकल बिल्स, एजुकेशन, इस सब पर खर्च कर दिए और उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। पर श्वे, शी वॉजंट कन्विंस्ड। शी कॉल्ड सू अ ग्रीडी वुमन, और ये चीज़ सू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सू वॉज अपसेट टू बी कॉल्ड ग्रीडी व्हेन ऑल शी इज डूइंग इज टेकिंग केयर ऑफ देयर किड्स, taking care of her daughter, her parents, and herself, working 2 jobs to make the ends meet. That afternoon, when Shwe went to take her nap in her room, Sue slowly walked into the room, creeped next to Shwe, took a rope, and began strangling Shwe until she lost her life. Once Sue realized what she has done, she took Shwe's body to the cellar and dumped her body in the cellar.
Sue was quite confident that she will never be caught because no one other than Sue goes down in the cellar, and she was successful for 5 years. Sue just told everyone that Shui ran away with her lover, and everyone, including her brother, believed her. When police did the DNA testing, they could confirm that the third body in the cellar is indeed of Shui. But there is still one question that is left: why kill the two brothers? By 2008, both of Sue's parents passed away, and now Sue was left to take care of her family and also be the breadwinner. In China, once you have your medical license, you have to keep updating your records. But Sue couldn't update her records on time, because of which she lost her license to practice and she had to shut down her clinic. Sue अभी भी अपने घर से illegally medical practice कर रही थी, but because she lost her credibility, she lost her business as well. Sue अब अकेले पैसे अर्न कर रही थी. उसके siblings उसे कुछ पैसे भेजा करते थे, but it wasn't enough. सू जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी, पर उसके नेफ्यू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और बिकॉज सू को पता नहीं था कि उसे क्या हुआ है, सू उसे ट्रीट भी नहीं करवा पा रही थी, और ना ही सू के पास इतने पैसे थे कि वो उसके इलाज के लिए उसे कहीं अच्छी जगह ले जाए, और सू अपने नेफ्यू को ऐसे परेशान भी नहीं देख सकती थी. सू अपने नेफ्यू के इलाज के पैसे मांगने के लिए गांव की एक वेल टू डू फैमिली के पास जाती है, लू एंड लाओ की फैमिली. एंड इन चाइना अक्सर जब ऐसी कोई बात होती है, अगर किसी को किसी से पैसे लेने होते हैं, तो वो घर के बड़े को अप्रोच करते हैं. तो सू भी लू के पास जाती है अपने नेफ्यू के इलाज के पैसों के लिए. वो लू को सब कुछ बताती है कि उसके नेफ्यू की हेल्थ कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, एंड लू वॉज हैप्पी टू हेल्प सू. लू सू का दर्द समझता है और वो सू को पैसे देने के लिए राज़ी भी हो जाता है, बट ही हैड वन कंडीशन: जब तक सू लू के सारे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस नहीं कर देती, Lou can sleep with her anytime he pleases. Sue was desperate. She needed help. Even though she had this loathing feeling, she didn't have any other option. So she agreed to it. This kept on going for months and months and months. Whenever Lou pleased, he molested Sue until one day he walked in with Lao. और उसने सू को कहा कि जो पैसे उसने उसे दिए हैं उसमें लाओ का भी कंट्रीब्यूशन है, which is why she's obliged to let Lao do all of the same acts that Lu is allowed to do with her. Sue was appalled. She couldn't fathom what she was hearing, but she didn't have any choice. She wanted to get out of this torture. She wanted to get out of this abuse that she was forced to endure every single day. To end this misery, Sue Lu को अपने घर बुलाती है और उसे कुछ pills देती है. She tells him that if he takes these pills, he will feel energetic. Lou got excited and he took these pills because this was the first time Sue was showing interest in getting abused. और जैसे ही वो ये pills लेता है, he passes out. And just like Shui, Lou walks up to him, slowly creeps behind him, takes a rope, wrap around his neck, and began strangling Lou until he lost his life. After that, she takes his body to the cellar and just dumps him there. सू को पता था कि लाओ अपने भाई को ढूंढते हुए उसके घर तक जरूर आएगा, और लाओ उसके घर पहुंचा भी. वो काफी गुस्से में था. वो सू से काफी सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था. उसको काम करने के लिए सू ने उसे एक गिलास पानी दिया पीने के लिए, बट सू ने उस पानी में स्लीपिंग पिल्स को क्रश करके डाला हुआ था. एंड जस्ट लाइक लू, जैसे ही लाओ ने वो पानी पिया, ही पास्ड आउट. Sue did the same thing with him. She strangled him. She dragged his body to the cellar and threw it inside. ताकि किसी को उस सेलर में से डेड बॉडीज की स्मेल ना आए या कोई फिल्थ के कारण उस सेलर के आसपास ना जाए, सू वुड मेक श्योर टू poop in that cellar and she would also dispose garbage in that cellar. अपने कन्फेशन के बाद सू के पास बस एक ही सवाल था: Why do men always treat me like this? सू को ये चिंता जरूर थी कि अब उसके बच्चों का क्या होगा, बट एट द सेम टाइम शी वांटेड कि उसे डेथ सेंटेंस मिल जाए. सू ने पुलिस को कहा कि शी फील्स सो लाइट आफ्टर कन्फेसिंग, शी फील्स सो रिलीव्ड, क्योंकि हर दिन उसे ये टेंशन लगी रहती थी कि टुडे इज द डे दैट शी इज गोइंग टू गेट कॉट. आज उसके क्राइम्स सबके सामने आ जाएंगे. इस केस की न्यूज़ जब चाइना में फैली या जब लोगों ने इस बारे में पढ़ा, जब मैं भी इस केस के बारे में रेडिट पे पढ़ रही थी, आई कुड सी कि इस केस को लेकर लोगों के बहुत मिक्स्ड इमोशंस हैं. एक तरफ लोगों का कहना है कि सू वाज फेल्ड बाय everyone in her life, everyone, and she herself is a victim in this situation and she should not get harsh sentence. But at this
same time there are some people who believe कि सू ने जो भी कहानी बताई है that she was abused, and I'm in no way disregarding her sexual abuse claims, but some people believe कि ये सारे claims सू ने लगाए हैं, but जिनके ऊपर उसने ये claims लगाए हैं they are not here to defend themselves. We only know the story from Sue's perspective. We don't know the story from their perspective. Regardless of what citizens thought or what people think, Sue was sentenced to death, and on February 10th, 2012, she was executed. So, that is the story of the lady serial killer of China. Honestly, I don't know. It's a very intense story. It definitely is one that makes you question a lot of things, but please do let me know your opinions in the comment section. If you have any information that I might have missed, or if you have any case recommendations, please do let me know that as well. And if you liked watching today's video, please make sure to give me a thumbs up, and if you would like, you can also subscribe to my channel. Until then, take care, and I'll see you in my next video. Bye.